عزیز غیر عزیز تھن میں مدد ہوئی دیکھا میرے چونکہ ہماری جنگ پیڑو ورلڈ بینک اور حکومت پاکستان کے ساتھ ہے اس مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے خلاف، تو میں اردو میں، کیونکہ وہ تو اردو سمجھتے ہیں یا پھر انگلش سمجھتے ہیں، تو میں اردو میں آپ کے سامنے وہ باتیں کروں گا جو گزشتہ 15-16 مہینوں میں دریائے سوات بچاؤ تحریک نے کیے ہیں، اور آج جو آپ یہاں بلائے گئے ہیں، آپ یہاں جمع ہیں، ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں اور آئندہ ہم کیا کریں گے آپ کی مشاورت سے۔ ہم ایک قوم ہیں، ہماری اپنی زمین، اپنی زبان، اپنی ثقافت اور اپنی تاریخ ہے۔ ہم خود کو دوسروں قوموں سے الگ سمجھتے ہیں اور دوسری قومیں ہمیں بھی خود سے الگ سمجھتے ہیں۔ ہمارے اپنے رواجی قوانین ہیں، اپنی روایات ہیں اور اپنا دستور ہے۔ ہم اس دھرتی کے اصل اور قدیم باشندے ہیں، ہم اس دھرتی کے اصل اور قدیم باشندے ہیں، جہاں ہمارے آباء و اجداد سے پہلے کسی اور کے بسنے کے شواہد نہیں ملتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم اصل اور یہاں قدیم باشندے، اور جن کو انگلش میں انڈیجنس کہا جاتا ہے، ہمیں اپنے اس وطن کے یا اس زمین کو ہم وطن کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ جب بھی ہمارے کراچی میں، پنڈی میں یا شہروں میں ہمارے لوگ جو بستے ہیں تو وہ کہتے ہیں وطنہ کے وقت تو وطن کے ویدو اور وطن کے روان تو وہ اس دھرتی کو اپنا وطن سمجھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے اس دھرتی سے، اپنی اس مٹی سے، اپنی اس جنگلات سے، اپنی اس چراگاہوں سے، اپنی اس گلیشیئر سے، جھیلوں سے، چشموں سے، درختوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور ان کا وجود ان درختوں، اس زمین کی وجہ سے ہے۔ اس لیے تو ہمیں تانا بھی دیا جاتا ہے، نور خلق تن ساتھی کوستانی وطن ساتھی، یہ بھی کہا جاتا ہے نا، ایسا بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دھرتی سے ہماری ایک بڑی لگاؤ ہے، تاریخی لگاؤ ہے۔ ہمارے کسی شاعر نے کہا تھا، من وطن قیمتی اب ہوائی صفا اتل کھن آسی پوشو آسی خواہش غلبہ۔ ہمارے وطن کا پانی، اس کی ہوا اور اس کا موسم ہی جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، اور یہاں سیاح آتے ہیں اور یہاں سیاحت پنپتی ہے، اور سیاحت ہماری معیشت کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے کسی اور شاعر نے کہا تھا، ایک توروالی شاعر نے، من وطن سی دارو تھی ادل شدل او ہوا کیا ادھو وطنا خلق یدی حسینہ۔ ہماری زبان نے اس علاقے میں ہر کونے، ہر چٹان، ہر کھائی، ہر پہاڑی، ہر راستے، ہر چشمے، ہر کھیت، ہر نالے کو نام دیا ہے۔ آپ کو یاد ہے ہر جگہ کا نام یہاں موجود ہے۔ ہماری زبان کا تعلق آریائی ہے، مطلب ہند آریائی زبان سے اس کا تعلق ہے۔ لیکن آپ یہ بتاؤں کہ ماقبل آریہ جو 1500 بیفور ماقبل مسیح اس برصغیر میں آئے تھے، ہمارے زبان میں اس کی بھی اثرات ہے۔ تو ہم اس سوات کے اصل باشندے ہیں، اور اس کے انڈیجنس، اور پیڑو اور ورلڈ بینک ہمیں کہتا ہے کہ یہ لوگ تو یوسف زئی پٹھان ہیں، اور یہاں ان کی زبان کوہستانی ہے، اور یہ یہاں کے زیبدی یا اصل باشندے نہیں ہیں۔ تو میں، اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے، معلوم ہے کہ ہمارے اپنے رواجات کے مطابق ہمارا اپنا موسمی کیلنڈر بھی ہوتا ہے، جو گرنال کا بہادر کاکا کا کیلنڈر، وہ اب بھی مستعمل ہے، لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پانی کی جو تقسیم کا اپنا طریقہ کار ہے، وہ کسی قانون یا ریاست نے ہم پر لاگو نہیں کیا ہے، آپ لوگوں نے خود بنایا ہے۔ گرنال میں ہے، جیاب ہے، یا ہمارے دوسرے گاؤں میں جو تقسیم کا طریقہ کار ہے، یہ سب یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اس علاقے کے اصل انڈیجنس باشندے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جنگلات شاملات کی تقسیم کا ہمارا اپنا ایک رواج ہے، اور وہ رواج زیادہ تر دھیمی لوگی پہ ہے۔ اگر جہاں قبائلی توتری تقسیم کا نظام ہے، لیکن وہ نیچے جا کر وہ پھر بھی دھیمی پہ وہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ورلڈ بینک اور دوسرے اداروں کی انڈیجنس جو آبائی لوگوں کی تعریف کی روح سے وہ کہتے ہیں کہ ان کے اپنے خاص رواجات ایسے لوگوں کے ہو تو وہ اصل باشندے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایسی مثالیں کئی ملتی ہیں، اور پھر ہمیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری شاعری
चरागाहों, ग्लेशियर, चश्मों से भरी पड़ी हैं। वो जो चरागाह जिसको हम बांध कहते हैं, वो किसी शायरा ने कहा था, मिलालय उथलखन से आसली माँ मेरा, मिलालय उथलखन से आसली माँ मेरा, अचीमी व नथाई अमीद व मैमा। या आपने ये सुना, पुशुआ से बादशाह थी, उचात खने दे वदान थू, शिदल उती ख्यारामी से वतन में कोहिस्तान थू। तो आपने अपनी ज़मीन और धरती को देखा है ना, तो ये सारा इसमें। और आपको, लेकिन ये भी एक बात है जो आपको ये तो मालूम है कि इलाका बड़ा खूबसूरत है, इलाका बड़ा शानदार है, इलाका तंग भी है, यहाँ पानी की कसरत है, यहाँ माहौल जिस तरह दराज में हुआ है वो तबाह हो जाएगा। और हमारी 40% आबादी हमारे परवालियों की पहले हिजरत कर चुकी है, और हम भी जाएंगे। इलाका यूं ही रह जाएगा और हमें कोई फ़ायदा इसका नहीं हो जाएगा। तो फिर हमने क्या किया? दरियासात बचाओ तहरीक ने, मैं मदीना प्रोजेक्ट पे आता हूँ, 23 जुलाई 2023 को इस पेड़ों ने पख्तूनख्वा माहौलियाती इदारे की मदद से एक आवामी सुनवाई, जिसको पब्लिक हियरिंग कहते हैं, मदीन होटल में कराई। और यहाँ से बहरीन से लोग ज़बरदस्त उसमें घुस गए और सब लोगों ने उस मदीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मुखालिफत की। लेकिन इस इदारे ने फिर भी इनको NOC दे दिया, वो सर्टिफिकेट दे दिया कि अब अपना काम करें। उस सुनवाई में मतलब नवाज, हमारे ये सारे और सारे साथी शामिल थे, बिलन ये सब। लेकिन पेड़ों ने उस हमारी बात नहीं मानी। तो फिर जुलाई 2024 में यहाँ के साथियों ने दरियासात बचाओ तहरीक के नाम से इस मदीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ ये तहरीक शुरू की। और उस वक्त 15-16 महीने हो गए। हमने सोचा कि आप क्या करें, ये तो पेड़ों हमारे सामने है, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा है। तो हमने देखा कि उनका बाप तो वर्ल्ड बैंक के पैसे वो दे रहा है, तो चलो इस बाप को गले से पकड़ते हैं। हमने पिछले साल अगस्त में सैकड़ों ईमेल शिकायत वर्ल्ड बैंक को लिखे, और इसके बाद वर्ल्ड बैंक के साथ हमारे 10 से ज़्यादा इजलास मीटिंग हो चुके हैं। वर्ल्ड बैंक और पेड़ों ने अपनी सारी गलतियां मानी है कि हमने इन रिपोर्ट्स में गलतियां की हैं और ये हमसे गलतियां हो चुकी हैं, और इसलिए इस प्रोजेक्ट को जनवरी में शुरू होना था, अभी तक वो नहीं शुरू कर सके काम, कुछ भी काम उस पर शुरू नहीं कर सके। और अगर आपका साथ हो और हमारी हिम्मत हो, आपकी दुआएं हो, हमारी माओं की दुआएं हो, तो ये प्रोजेक्ट कभी नहीं होगा इंशाअल्लाह। आज हमने आपको यहाँ आने की ज़हमत दी है ताकि हम आपसे और इस तरह मैंने बता दिया कि वर्ल्ड बैंक के साथ तो ये हुआ, लेकिन इसके साथ 20 से ज़्यादा इजलास पेड़ों और ये जो ज़िला इंतज़ामिया है, DC या AC, इनके साथ हुए हैं। इस तरह हमारे इस इलाके में जरगे घर घर जरगे हुए हैं। हमारे कालाम में भी जरगा हुआ है, मदीन में भी जरगे हुए हैं, और हमने इस्लामाबाद और क्या है स्वात में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी किए हैं। हमने वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर्स के साथ ऑनलाइन इजलास भी किए हैं, मीटिंग्स भी किए हैं। और आपके लिए मैं बताऊं कि पाकिस्तान में ये पहली मिसाल है कि इस तरह आपकी जो आप लोग आपकी शनाख्त और आपकी इनफरादियत पूरी दुनिया के बड़े इदारे अक़वाम मुत्तहिदा तक वो समझ चुके हैं, वो जान चुके हैं। लेकिन अभी हमें क्या मसला, अभी चैलेंज क्या है? हमें चैलेंज तो ये है, हम अभी तक कामयाब जा रहे हैं इंशाअल्लाह। अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है, अभी तक हम कामयाब जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक भी पीछे नहीं हटता, हम भी पीछे नहीं हटते, और हुकूमत भी पीछे नहीं हटते। तो हमने अभी क्या करना है? अभी हमारे चंद मुतालिबात है, उसके मैं आपके सामने रखता हूँ। उनको हम चाहते हैं कि ये मुतालिबात मंजूर हो, ये मुतालिबात वो माने, तब जाकर हमारी बात उनके साथ बनती है। पहली, हम इस इलाके के असल बाशिंदे हैं। हमारा वजूद इस खित्ते में रियासत पाकिस्तान और रियासत स्वात से पहले का है। हमारी ज़मीन, जंगलात और पानी पर हक तारीखी, इखलाकी और रूहानी है। कोई भी तरक्याती मंसूबा हमें असल फरीक और हकदार के तौर पर तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। इस पर आप राजी है ना? बगैर हमारी हकीकी और बाखबर रजामंदी ये होती है कि कोई मंसूबा
जिस तरह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या कोई इस तरह का मंसूबा आता है या कोई मादनियात का, वो आपको पहले उसकी पूरी तफसीलात बता दे, उसके फ़वाइद बता दे, मशवरत करे और आपको फिर कहे कि आप इस पर राज़ी है कि नहीं है। तो हम ऐसे किसी मंसूबे को नहीं मानते हैं जो बग़ैर हमारी पेशगी रजामंदी, इत्ला और बाखबर मालूमात के बग़ैर किए जाए। फिर ये भी है कि पाकिस्तान की हुकूमत और आलमी इदारे जैसे वर्ल्ड बैंक अपने माहौलियाती और मकामी अक़वाम के हुकूक़ के वादों पर अमल करें। आपको पता है कि एक पाकिस्तान का कानून है और एक वर्ल्ड बैंक का कानून है। हम अब ये पेड़ों मेड़ों तक बीच में वैसे आए हैं। हमारी असल फरीक तो वर्ल्ड बैंक है, कहानी तो वहाँ है। हम पेड़ों से कहते हैं कि भाई आप बीच में से निकल जाए, हमें और वर्ल्ड बैंक को आपने सामना करने दें, हम करेंगे, क्योंकि उनके क़वानीन में हमने उनको पकड़ा हुआ है कि आपने ये गलती यहाँ की है, आपकी पॉलिसी ये है, आपने ये करना है। इनके साथ फिर और एक बात यह है कि दरिया स्वात बचाओ तहरीक इस पूरे इलाके की इज्तिमाई आवाज़ है। इसको ये इदारे वर्ल्ड बैंक समेत तस्लीम करें। और हम ये भी चाहते हैं कि हम तरक्की के खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसे मंसूबे नहीं हो जो तरक्की के नाम से आपकी बर्बादी हो। हम चाहते हैं कि वो तरक्की जो हमें फ़ायदा दे, वो तरक्की जो हमारी रजामंदी के वजह से हो। तो मैं आखिर में आपसे बताता हूँ, अपने बुज़ुर्गों, नौजवानों और बच्चों के साथ आज के इस जरग का मकसद यही है कि आपको इन सब बातों से किसी हद तक आगाह किया जा सके और आपकी मदद से आगे का लायामल पे किया जा सके। हमने गुज़श्ता 15 महीनों से इस मंसूबे को रोका हुआ है। हम बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर आपकी दुआओं की मदद से लड़ सकेंगे और यहाँ इस धरती पर भी आपकी अमली तहरीक और अमली ताउन की मदद हमें दरकार है। मैं आपको बताता हूँ, मुझे अब खुद पर यकीन है, अपने साथियों पर यकीन है कि हम बैनुल-अक़वामी अक़वाम मुत्तहिदा हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, हम उन सब के साथ लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ ग्राउंड में ज़मीन पर आकर हमारे साथ खड़ा होना है और लड़ना है। और यहाँ जब कोई हाथ इस ऐसे मंसूबे पर अगर शुरू करना है तो हम सब ने मिलकर उसको रोकना है, इस हाथ को खींचना है कि आपने नहीं छोड़ना है। जब तक ये हम उस पर राज़ी न हो, हमारी तसल्ली न हो, हम नहीं छोड़ेंगे इस तरह। इसलिए हमने आज को आपको यहाँ आने की ज़हमत दी है। थोड़ी सी मेरी बातें बहुत तवील थी, बार बार नवाज छुट्टी देते हैं। आखिर में मैं अल्लामा इक़बाल के चंद अशार में बात ख़त्म करता हूँ। जो जिस दर्द से हम गुज़रते हैं, जो एहसास हमें हो रहा है, उसकी मैं करता हूँ। मेरे कोहस्तान तुझे छोड़ के जाऊँ कहाँ, मेरे कोहस्तान तुझे छोड़ के जाऊँ कहाँ, तेरी चट्टानों में है मेरे आब व जद की खाक, तेरी चट्टानों में है मेरे आब व जद की खाक, मेरे आबा व अजदाद की खाक, तेरे खम पीछ में मेरी बहिश्त बनी। यानी तेरा पूरा जो माहौल है, इलाका है, ये मेरी जन्नत की मानद है। खाक तेरी आम्बरी, आप तेरा तापनाक, तेरी मिट्टी ये आसमानों की तरह, ये खुशबू की तरह खुशबूदार है। और तेरा पानी ये मेरे लिए आबे ज़ुमज़ुम है, ये मेरे लिए बहुत ही मुझे ताबनाक करता है, मुझे उठाता है। तो मैं आज आखिर में यही है कि आज की बात कि हमने तो इसके साथ लड़ना है और मुझे यकीन है अपने आप पर, अपने साथियों पर, दरिया स्वात बचाओ की तहरीक पर हम किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे, किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर ये लोग, हुकूमत है, सरकार है, ये अगर सिक्योरिटी फोर्सेस लाती है, ये अपनी मशीनरी लाती है इस इलाके में बगैर हमारी मर्जी के, बगैर हमारी रजामंदी के, तो हमने उसको रोकना है। और आपके आज इस बारे में मशवरत दरकार है हमें। हम वहाँ तो, और हम पेड़ों से कहते हैं यहाँ पेड़ों बीच में से निकल जाओ, हमारा वक्त ज़ाया मत करो AC के साथ, DC के साथ, हमें वर्ल्ड बैंक को सामने लाओ। हम वर्ल्ड बैंक के साथ बात करते हैं क्योंकि सारा कुछ काम उसका है, फंडिंग वो करता है। तो ये आज की बात थी। शुक्रिया, थैंक यू। माशाल्लाह, ज़ुबैर तोरवानी साहब ने